Hello everyone, welcome to the class again. Dear friends, in our last class, in class 9, we were reading about the democracy and we had begun the tour of democracy. And this time in class 10, we will continue the tour of democracy and this shall be the first chapters and it is going to be very important. So take a careful listen about this chapter. So this is the power sharing. We will know about the different things related to power sharing and how it is important in a democracy. So let's begin here. Power sharing. Okay, so the story here it will be begin that what is the power sharing and how it is very important for us. तो हम देखेंगे इसमें कि पावर शेयरिंग कैसे इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग और ये कैसे हमें अच्छे से समझा रहा है इस स्टोरीज़ के माध्यम से. So the power sharing means you know that how power can be shared between the different constituent of the governments, between the different community of the government of the society, and between the different aspect of our life. So here it tries to tell us about the power sharing through the stories from the two different countries, that is Belgium and Sri Lanka. Okay, we will read about Belgium and Sri Lanka at the beginning and thereafter we will gradually know the different aspect of power sharing. So let's take a brief account about Belgium and Sri Lanka. So as you know, Belgium is a European country, a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. The ethnic composition, what do you mean by ethnics? A group of people who share same culture, tradition, ideas, belief, etc. That is called ethnic composition. That is called ethnic. Okay. So here the ethnic composition in Belgium is very much complex. We can take a look here. Of the country's total population, 59% lives in Flemish region. कहाँ रहते हैं? Flemish regions में रहते हैं. And they do speak French language. They do speak French language. Another 40% of people live in Wallonia region and speak French language. So 59 are Dutch speaking and 40 are the French people. But remaining 1% of the Belgians speak German. 1% the German people. And a very different thing here is in the capital city, the thing is something different here. The capital city Brussels, 80% people speak French. Okay, 80% people speak French while 20% people speak Dutch. So here you can see, suppose we can take here, suppose this is Belgium, 40% people speak French language, whereas 59% people speak Dutch language, 1% remaining 1% people speak German language. And there is another complex structures is here, that is the capital city of Brussels, where 80% people speak French. इधर ये 40% French से बोलते हैं. 80% people speak French and 20% people speak Dutch. So here you can see the scenario in the capital city of Brussels is something different. The minority of the country are a majority in the capital city. The minority French are a majority in the capital city of Brussels, which constitute about 80%. So this is the social structures, this is the ethnic structures of the country.
let's see what the chapter is going to tell about the thing and the story of Belgium, what it is going to tell us. So the majority French speaking community was relatively rich and powerful. ज़्यादातर के फ्रेंच के लोग rich and powerful थे, and this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development much later. ज़्यादातर के एंड एजुकेशन मच लेटर, जिनको डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट बाद में आता है, दे वेर नॉट हैप्पी विद द फ्रेंच पीपल. ये जो डॉच थे, डॉच हाउ एवर दे वर मेजोरिटी, दे डिड नॉट गेट सपोर्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो दे हैड ए काइंड ऑफ डिसकंटेनमेंट अमंग देमसेल्व्स फॉर द फ्रेंच पीपल के लिए इनके डिसकंटेनमेंट थोड़ा बहुत रहता था. एंड दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s and 1960s. एंड द सिचुएशन गॉट वेरी सिवियर ड्यूरिंग 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. देखो ब्रसेल्स के बारे में हम देखे थे कि ब्रसेल्स में हाउ इज़ द सिचुएशन इन ब्रसेल्स. जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रेंच माइनॉरिटी आर ए मेजोरिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स. सो हियर यू कैन सी द थिंग हाउ कॉम्प्लेक्स द सोसाइटी ऑफ ब्रसेल्स इज. जहाँ जो सेंटर है, उनकी जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें माइनॉरिटी आर ए मेजोरिटी देयर. ओके, ब्रसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country, but minority in the capital city. लेकिन कैपिटल में वो लोग ना माइनॉरिटी थे. So here you can see that this was the condition, this was the societal structures of the Belgian country. Now take a look to Sri Lanka. Sri Lanka, you very much familiar with Sri Lanka because that is quite neighboring country. Okay, भारत के neighboring country है श्रीलंका. श्रीलंका is an island nation just few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore population, about the same in Haryana. हरियाणा के जैसे population है. Like other nation in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. जैसे हमको पता है कि एशियन कंट्रीज जो है, साउथ एशियन कंट्रीज जो है, they are having a lot of ethnic diversities. Now उनके बहुत सारे ethnic diversities है. The people from belonging to different color, different creed, different religion, different ethnic race, सारे चीज़ों का अलग अलग कम्युनिटी के लोग साउथ एशिया में देखने को मिलता है. सो ऐसे देखो, the major social groups are Sinhala speaker 74% and the Tamil speaker 18%. देखो ये लोगों 74% and 18%. Among the Tamils are 2 subgroups. Tamil फिर 2 तरह के हैं, the Tamil natives of the country and the Indian Tamil. इंडियन तमिल के बारे में ये है. ओके, तो ये तो ब्रसेल्स के बारे में दिया है, जैसे कि हम दिखा रहे थे. ये बेल्जियम है, एक ये ब्रसेल्स है, ये है आपके फ्रेंच स्पीकिंग, आपके वॉलोनिया का फ्रेंच स्पीकिंग. ओके, ये है आपके कौन सा डच स्पीकिंग पीपल. सो लिव इट, लेट्स गो टू श्रीलंका. राइट, सो श्रीलंका के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं. ना ज़्यादातर के ना सिंघलिक स्पीकर आर द मेजोरिटी and the Tamil speaker are the minority, but both but the Tamil are of 2 groups. जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंकन Tamils and the native, the Sri Lankan Tamils are called the native Tamils, whereas the rest whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamil. जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे इंडेंटेड लेबर, जैसे कि जो बॉन्डेड लेबर थे, वो कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे. किसके साथ गए थे? जो कॉलोनियल रूलर्स उनको लेकर गए थे. तो वो उधर ना इंडियन तमिल भी है, जो जिनके फोर फादर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं. सो श्रीलंका तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. वी कैन सी थ्रू द मैप ऑल्सो.
Most of the Sinhalese speaking are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu and Muslim. There are about 7% Christian who both are Tamil and Singhal. तो हम इधर देख सकते हैं जैसे कि okay, so just imagine what could happen in situation like Sri Lanka and in Belgium. The Dutch community could take the advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking. This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even weak majority and could impose its will on the entire country. So here you can see, my dear children, after going through the two story, we see that in the case of बेल्जियम के केस में देखें कि बेल्जियम के जो डच कम्युनिटी थे वो ज़्यादातर के ज़्यादातर के मेजोरिटी कौन थे, डच कम्युनिटी थे. अगर वो डच कम्युनिटी अगर कुछ मेजोरिटेरियन रूल कराते तो कंट्री में और ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता. और वैसे ही श्रीलंका में हम देखें कि सिंघल लोग मेजोरिटीज है, अगर वो कुछ अपने सिर्फ विल के लिए काम कराएंगे और दूसरे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, तमिल हो या डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के जो है उनको अगर दबाव डालेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा. एंड दैट विल लेड टू द कन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री एज वेल. सो अभी हम देखेंगे कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय बोथ द कंट्रीज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स और इन ऑर्डर टू ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या वो यानी कि ये लोग काम किए थे. ये देखो हम लोग को श्रीलंका का हम देख लिए ना. इन द नॉर्थ एंड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री यू कैन सी द सेम तमिल पीपल. So now see that what was the case in Sri Lanka and how the Belgian people do for their solving out the problem. देखो ये श्रीलंका का काम हम देखेंगे. श्रीलंका क्या करता था, वो सारे जो सोशल स्ट्रक्चर के साथ वो कैसा करता था, है ना. सो अभी हम देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है ना, द गवर्नमेंट विच ओनली वर्क फॉर द मेजोरिटरी ग्रुप ऑफ द कंट्री. जैसे कि हम भारत में हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन भारत मेजोरिटेरियन पॉलिसी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. वी आर ए सेकुलर स्टेट. सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज लॉज अपॉन द माइनॉरिटी ग्रुप. इम्पोज लॉ यानी कि फोर्सफुल लॉ ऑन द माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर नहीं कर सकता है. We have a very judicious division of power among the different social groups, among the different governments, different units of the government at the different levels of the government. Okay, ये सारे हम किए हैं. लेकिन देखो ये श्रीलंका क्या गलत किया है. श्रीलंका emerged as an independent state in 1948 and the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their minority. 1948 को तो वो फ्रीडम मिल गया उनको, लेकिन ये जो सिंघल के जो लीडर थे यानी श्रीलंका के जो लीडर्स थे ना, दे सॉट, दे वांटेड टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. वो मेजोरिटी के वजह से गवर्नमेंट ना ये करने के लिए कोशिश किए, यानी कि टू कैप्चर द गवर्नमेंट, टू होल्ड पावर इन द गवर्नेंस के लिए कोशिश किए. एंड एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन measures to establish Sinhala supremacy. So the government committed a blunder. The government committed a big mistakes. That is, it imposed majoritarian rules. That means the government decided that the rules of the majority people shall prevail in the nation. ना कंट्री में किसका रूल रहेगा, ना जो मेजोरिटरी ग्रुप है उसका रूल रहेगा, ये डिक्लेयर करा दिया. और वैसे ना इट अडॉप्टेड ए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज. ना वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगा, ज़्यादातर के मेजोरिटी को ना क्या करने लगा, प्रेफरेंस देने लगा, उनकी लाइक पॉलिसीज बनाने लगा, राइट. सो इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official language, as only official language, thus disregarding Tamil. तमिल को डिसरिगार्ड करके, इग्नोर करके ना सिंघल लैंग्वेज को ना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया.
The government also followed preferential policies that favored single applicants for universities positions and government job. That is what I said. Now it adopted a preferential policy even in the schools, colleges and government job. A new constitution stipulated means designed ये डिसाइड किया that state shall protect and foster Buddhism. यानी कि द गवर्नमेंट itself propagated and promoted the religion of Buddhism, जबकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि उधर मुस्लिम और आपके क्रिश्चियन हिंदू लोग भी रहते थे। तो ये होते हुए भी ना ये बुद्धिज्म को प्रोपागेट करने लगा, ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर करा दिया। And you just imagine what could be the problem. Despite that social diversity, despite the ethnic diversities, the government is giving a preference to only one community, only the majority community. So all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. The Sri Lankan Tamils got violated, they feel isolated, they feel alienation. उनको ये लगा है ना, अकेलापन महसूस होने लगा कि यानी कि वो उसी कंट्री के होते हुए भी ना दे वर बीइंग इग्नोर्ड एंड दे वर गिवन नो प्रीफरेंसेस, नो प्रिविलेजेस इन द गवर्नेंस और इन एनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कुछ भी उनको नहीं मिलने लगा। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and cultures. Their language and culture also ignored. However, they were speaking Tamil, but Sinhala became the official language of the country, and their language simply ignored. They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. So this is how the श्रीलंकन गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेटेड करने लगा, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया, इट डिनाइड द पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग द पीपल, ये डिग्नेट करने लगा। सो एज ए रिजल्ट द रिलेशन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड between the Sinhala and Tamil communities strained over the time. There was a dispute between the Sinhala and Tamil communities, their relation broke down. Okay, the Sri Lankan Tamil launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language. But the Sri Lankan Tamil did not stop there. They did not quit their struggle. वो बंद नहीं किए, वो कंटिन्यू करने लगे। For the recognition of Tamil as an official language, for the regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. तो फाइट करने लगे, they rose for the freedom, they rose for the asking for their freedom, asking for the autonomy in the different sectors, equality in the different opportunities, वो लड़ना शुरू कर दिए। But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. But however, they never got success for a long period of time. But by 1980 क्या होने लगा? By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum in northern and eastern part of the Sri Lanka. लेकिन बाद में क्या हुआ ना, तामिल अलम कंट्री वो लोग डिमांड करना शुरू कर दिए। ओके, हाउ लॉन्ग दे विल टॉलरेट द थिंग, हाउ लॉन्ग दे विल टॉलरेट द इनजस्टिस, कितने टाइम वो लोग इनजस्टिस को सहन करेंगे। तो वो लोग फाइटिंग शुरू कर दिए। देयर आफ्टर द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तरह के कन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया, कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों कम्युनिटी के बीच। एंड इट सून टर्न इनटू ए सिविल वार, ये बहुत जल्दी एक सिविल वॉर हो गया। एंड इंटरनल इनडिसिप्लिन होने लगा, एंड इंटरनल वार होने लगा, यानी कि भयानक वार होने लगा। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव किल्ड, many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. तो ये सारे भयानक सिचुएशन होने लगा। एंड अर्लियर वी न्यू दैट Sri Lanka was getting very
dominance over the economy, very prosperity, gaining more prosperity over the economy. But because of the civil war, it had got a terrible setback to the social and cultural and economic life of the country. Okay, and finally this situation ended in 2009. ये सारे प्रॉब्लम 2009 को एंड हुआ. तो डियर फ्रेंड्स, आपको अभी पता चला कि श्रीलंका का जो सोशल स्ट्रक्चर्स था उसको हैंडल करने का तरीका उसका कुछ गलत होने लगा, है ना. तो इसलिए ये सारे भयानक सिचुएशन का एमरजेंस होने लगा, ये सारे भयानक सिचुएशन क्रिएट होने लगा. ओके, द गवर्नमेंट फेल टू हैव ए जुडिशियस पावर शेयरिंग. ओके ना, फेल हो गया कि पावर शेयरिंग सही ढंग से नहीं कर पाया. समझ में आ रहा है कि नहीं. सोशल स्ट्रक्चर यानी कि ऑल द सोशल कम्युनिटीज मस्ट बी रेस्पेक्टेड प्रॉपरली, बट द गवर्नमेंट डेलिबरेटली इग्नोर्ड, उसको डेलिबरेटली इग्नोर करने लगा. ओके, so let's see what the another country Belgium did for the country's population, what it did with the country's population. Now जो country population था, what are the accommodation in Belgium, what are the things that was adopted in the country of Belgium. Belgium क्या था देखते हैं. See, the Belgium leader took a different path. They recognize the existence of regional differences and social diversities and cultural diversities. So primarily they were very much conscious about the problem that was emerging in the country. देखो बेल्जियम के जो लीडर थे वो पहले से ही जानकारी उनको मिल गया कि हाँ, प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस एंड दैट मस्ट बी जुडिशियसली हैंडल्ड. ना उनको लगा कि हमें बहुत सही ढंग से उसको संभालना होगा. So between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. देखो ये लोग क्या किए ना, they amended their constitution 4 times. Okay, and why it was so? Now it was only to give justice to all the communities who living in the country. जो कंट्री में रहते थे उनको सारे कम्युनिटी कैसे अच्छे से रह पाएंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से चेंज करने लगे. जैसे कि भारत में हम लोग का कभी कभी बहुत डिस्प्यूट होता है, रिलीजियस डिस्प्यूट होता है, बिकॉज वी आर अलाउइंग द रिलीजियस कम्युनिटी टू हैव फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम इन द कंट्री. अगर हम लोग का सिविल कोड हो जाता, सिविल कोड यानी कि सारे लोगों के लिए कॉमन कोड हो जाता, तो हम लोग का ये प्रॉब्लम नहीं होता. सारे रिलीजन को सेम हम लोग रेस्पेक्ट देते ही है, लेकिन सिविल कोड यानी कि जो कंट्री का लॉ है वो अगर सारे लोग का सेम होता तो बहुत अच्छा होता है. जैसे कि हिंदू लोग का हिंदू लॉ नहीं रहना चाहिए, मुस्लिम का वो शरियत नहीं रहना चाहिए, वो अपने आप यानी कि सिविल कोड में आ जाना चाहिए. या क्रिश्चियन का भी उनके जो बाइबल का लॉ नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए, सब एक कॉमन लॉ होना चाहिए. लेकिन इसमें क्या हुआ देखो, तो ये लोग क्या किए, बेल्जियम की कंट्री क्या किया ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिए और जो कि सारे लोगों को ना सही ढंग से सारे लोगों को सही ढंग से कर चला पाएगा, यानी कि उनका जो कंट्री जो है उसको सही ढंग से रन हो पाएगा. द अरेंजमेंट दे वर्कआउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. द वे they handle the situation was very innovative, very unique in the world. दुनिया में ये बहुत यूनिक था. देखो, here are some of the elements of the Belgian models. बेल्जियम के लोग क्या क्या जो तरीका अपनाए थे, that is very unique in the world. देखो बच्चों, इसमें लिखा है ना, Constitution prescribe that member of the Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority members from each linguistic group. See how judicious they are. ना कितना वो लोग सही ढंग से वो लोग कुछ लॉ बनाए हैं. देखो इधर ना, कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिख दिए, दे स्पेसिफाइड, दे रोट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शैल बी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी, नो मैटर हु इज ए माइनॉरिटी एंड हु इज मेजोरिटी. दोनों को क्या करा दिए, समान के मिनिस्टर रहेंगे, सेम नंबर के मिनिस्टर रहेंगे.
और अगर कुछ बहुत स्पेशल लॉज होगा तो दोनों कम्युनिटी के मेजोरिटी मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेजोरिटी मेंबर सपोर्ट करना चाहिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली यानी कि वो अकेला किसी डिसीजन को नहीं ले पाएंगे, किसी एक मेजोरिटी ग्रुप ना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, दोनों कम्युनिटी का जरूरत है। देखो बहुत अच्छा है। Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions, Wallonia and Flemish regions में इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बहुत सारे पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे पावर ना स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज द पावर हैव बीन ना दे आर डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो लोग पावर लेंगे, दे इफ दे कलेक्ट देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हु इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डोमिनेट देम। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? नहीं, क्योंकि हम जैसे कि भारत में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे अफेयर्स में स्टेट को इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जो स्टेट रहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि नो वन कैन इग्नोर, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कैनॉट इग्नोर द लॉज ऑफ द Constitution. Okay, so in that way ये बेल्जियम में भी किया गया है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिया गया है और साथ में दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड स्टेप्स, ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द सेम थिंग ऑल्सो हैपन हियर। देखो ब्रसेल्स में जो मेजोरिटी थे, हम लोग को पता है कि फ्रेंच लोग मेजोरिटी थे। ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी था, फ्रेंच लोग मेजोरिटी थे जिसमें 80% थे, लेकिन द फ्रेंच आर ए माइनॉरिटी द कंट्री। माइनॉरिटी था, देखो जैसे कि वो लोग माइनॉरिटी थे, जैसे कि मैं ड्रॉ करके मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि पहले भी कर चुका हूँ। ब्रसेल्स में जो था 80% थे, कौन थे? 80% फ्रेंच थे और 20% डॉच थे। कौन थे? डॉच थे। लेकिन कंट्री में क्या थे? 40% फ्रेंच और 59% डॉच थे। तो इधर भी ये लोग 50-50 का मिनिस्टर शेयर किए, 50-50% का शेयर किए। हालांकि दोनों एक मेजोरिटी है एक माइनॉरिटी है, लेकिन इधर भी एक ग्रुप मेजोरिटी है एक ग्रुप माइनॉरिटी है, उल्टा है ना। द सिचुएशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। सो इधर भी ये लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन 50-50 का कर दिए। देखो दे रेस्पेक्टेड द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ये लोग भी नहीं लड़े और ये लोग भी नहीं लड़े। इधर ये 20% लोग भी 50% शेयर लिए और 80% लोग भी 50% शेयर लिए। इधर 40% लोग कितना लिए? 50% शेयर लिए। इधर 59% लोग भी 50% शेयर लिए। तो ये जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर, ये लोग जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो बहुत सही तरीक़ा से जो पावर को शेयर किए, ये बहुत अपने आप एक यूनिक एंड बेस्ट ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक बहुत अच्छा ढंग का ये गवर्नमेंट बनाए थे। द फ्रेंच पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स, 80% थे लेकिन वो एक्सेप्टेड किए। बिकॉज द डॉच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डॉच 59% होते हुए भी 50% का जो रिप्रेजेंटेशन ना माने थे। सो ये था, देखो 3 स्टेप बहुत सही ढंग से किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इनके और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट था। क्या था? एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एंड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज ग्रुप, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। No matter where they live, the government has power regarding cultural, educational and language related issues. So dear friends, you can understand that how they had another sort of government also, that is about the social and language affairs, and each group were allowed to form the government. सारे लैंग्वेज ग्रुप था ना, उनको एक लैंग्वेज ग्रुप बनाने का अधिकार मिल गया। So here we can know from the story, we can infer the thing from the stories that both the country had the equal sorts of problem, okay, the same like problem, but they their approach to solving out the problem was very very different. अगर बेल्जियम के जैसे अगर श्रीलंका भी करता तो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाता, यानी कि सही हो जाता, लेकिन श्रीलंका had a
बिग फेल्यूर इन एकोमोडेटिंग द थिंग्स. सो इधर हम देखेंगे बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैड वर्कआउट वेल सो फार. बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन. इतना छोटा सा कंट्री भी अगर लिंग्विस्टिक लाइन से अगर वो लोग अड़े रहते तो वो क्या हो जाता ना, डिवीजन हो जाता. When many countries of Europe came together to form European Union, now Brussels was chosen as its headquarter. So देखो उनको कितना रेस्पेक्ट मिला कि ये सारे वजह से जो यूरोपियन यूनियन बना ब्रसेल्स को चुना गया. देखो इसमें दिस बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. But the case in Sri Lanka was very different. The Sri Lankan people they thought to impose majoritarian rules upon the minority group. So therefore they had a big failure in the things in solving out the things. So this was about the story between the Sri Lanka and the किसके बारे में, श्रीलंका एंड आपके बेल्जियम के बारे में था. So this will be our first part regarding the things, and we started the journey through the two different stories and their division of powers. हम उनके पावर्स डिवीजन देखिए, श्रीलंका सही ढंग से नहीं कर पाया लेकिन बेल्जियम कर पाया. सो हियर दी पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्ट्स एंड द इश्यूज बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कंट्री. तो इसमें हम देख पाएंगे कि कैसे सॉल्व हो सकता है. पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ. सो रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. स्टे टू वॉचिंग द नेक्स्ट